خبر شامل کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا خانہ وال میں پیپلز کالونی اور دیگر علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خانہ وال شہر میں صفائی کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ نے خانہ وال شہر میں صاف ستھری اور عمدہ سڑکیں دیکھ کر سراہا۔ خانہ وال میں صفائی اور سڑکوں کی صورتحال دیکھ کر اطمینان ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ خانہ وال کے ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خانہ وال سمیت ہر شہر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہریوں میں صفائی بنیادی ضرورت ہے۔ فرض شناس ورکوں کو سراہتا ہوں۔ ہر ضلع میں جا کر صفائی اور دیگر امور کا خود جائزہ لوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سرکٹ ہاؤس خانہ وال آمد لان میں پودا لگا کر مون سجائی کا مہم کا افتتاح کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ذرائع کے مطابق لیاقت پور میں چنی گوڑ روڈ پر جندو پیر کے قریب موٹر سائیکل رکشہ بے قابو ہو کر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں جندو پیر کا 22 سالہ محمد عرفان زخمی ہوا اور اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر لیاقت پور منتقل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف چینا، اسسٹنٹ کمشنر خانپور آپ سے مخاطب ہوں۔ گورنمنٹ آف پنجاب بورڈ آف ریونیو کا ایک اسپیشل انیشیٹو ہے، CNIC نمبر کی انٹری ہم نے کرنی ہے جمع بندیوں میں، لینڈ ریکارڈ میں۔ اس کے لیے آج تمام محکموں کی میٹنگ بھی کی ہے اور اس کے اوپر ریونیو ڈپارٹمنٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ اس میں آپ سب سے گزارش، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور اسپیشلی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ سے رابطہ کریں گے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا فراڈ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ لوگوں کی زمینوں کو سیو کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی زمین کے ساتھ آپ کے نام جیسا دوسرا بندہ فراڈ نہ کر سکے۔ پلس بورڈ آف ریونیو کا اسپیشل انیشیٹو ہے کہ ہم نے 100% CNIC نمبر کی انٹری کرنی ہے ریونیو ریکارڈ کے اندر۔ ابھی تک اراضی ریکارڈ سینٹر پہ صرف 26 یا 27% لوگ جو آتے ہیں کسی کام کے لیے، ان کے CNIC نمبر کی انٹری تو ہے۔ باقی جو 73-74% لوگ ہیں وہ کبھی اراضی ریکارڈ سینٹرز پہ نہیں آئے، اس لیے ان کے CNIC نمبر کی انٹری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت 8 دہی مرکز مال الحمدللہ فنکشنل ہو چکے ہیں تحصیل خانپور میں۔ ہر کانوئی میں دہی مرکز مال، آپ اپنے متعلقہ پٹواری سے رابطہ کریں، دہی مرکز مال پہ تشریف لے لیں اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ، وہاں پہ خود اپنی جمع بندی کو چیک کریں، وہاں پہ اپنا صحیح شناختی کارڈ نمبر انٹر کروائیں تاکہ آپ کی تسلی ہو۔ اس کے بعد جمع بندی میں انٹری کروانے کے بعد اس کی کاپی بھی لیں تاکہ آپ کی زمین کے ساتھ کوئی فراڈ نہ کر سکے۔ مزید آپ کی سہولت کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور لوکل گورنمنٹ کے لوگ جن کے پاس آپ کے ریونیو کی ریکارڈ ہوگا وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے رابطہ کریں گے۔ کسی اسکول میں آپ کو بلا سکتے ہیں، یونین کونسل کے دفتر میں بلا سکتے ہیں، یا دہی مرکز مال پہ آپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو اپنے متعلقہ پٹواری سے ٹچ کریں، اس سے رابطہ کریں، اپنے نمبردار صاحب سے رابطہ کریں۔ نمبردار صاحبان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو کنوے کریں گے اور شناختی کارڈ نمبر کی انٹری کروائیں گے۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹاپ پرائورٹی انیشیٹو ہے، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ 31 جولائی تک ہم نے یہ اپنا سارا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ ادروائز جو لوگ، جو لینڈ اونرز، جو زمیندار اپنی زمین کے ریکارڈ میں یہ CNIC نمبر کی انٹری نہیں کرواتے، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ ان کے کھاتے کیوٹ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کے ٹیکس بھی میں بھی ان کو ہم ڈبل ٹیکس لگائیں، اور سرکار کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی بنیاد پر ان کے خلاف FIR اور دوسری جتنی بھی قانونی کارروائیاں ہیں وہ ہم ان کے خلاف کریں گے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، گورنمنٹ کے انیشیٹو کو کامیاب بنائیں اور اپنی زمین کو محفوظ بنائیں۔ شکریہ۔ ان کو اپنے کسی کے خبر شامل کرتے ہیں رحیم میار خان سے۔ ذرائع کے مطابق رحیم میار خان چک 86P کار اور مزدہ آپس میں ٹکرا گئے، تصادم کے نتیجے میں ایک شخص زخمی۔ ڈاکٹر عثمان صنف جمیل احمد زخمی، جس کی عمر 40 سال ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ کر زخمیوں کی ٹریٹمنٹ کی۔
جی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں چک کیال سے۔ ذرائع کے مطابق یہ بچہ چک کیال کا رہائشی ہے جس کے گلے میں نامعلوم افراد نے رسی ڈال کر زخمی کر دیا۔ اس بچے کو وکٹوریہ ہسپتال میں علاج کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ یہ بچہ فضل کریم مٹھائی والے کا پوتا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نامعلوم افراد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ یہ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ذرائع کے مطابق موٹر وے M3 پر افسوسناک ٹریفک حادثہ رجانہ انٹرچینج کے قریب ٹائر پھٹنے سے گاڑی حادثے کا شکار ہوئی۔ محکمہ ریلوے کے اہلکار سید مظاہر کے بیٹے نکاح کے لیے لاہور جا رہے تھے۔ حادثے کے نتیجے میں مظاہر حسین کی اہلیہ، بیٹی اور بیٹا موقع پر جان کی بازی ہار گئے۔ یہاں حاضر ہوا تعزیت کے لیے پیر صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا۔ میرے بڑوں کے اس گھرانے سے، ان کے آستانے سے آج کے نہیں صدیوں کے رشتے ہیں، تو اس ناطے میرا یہ فرض بھی بنتا تھا کہ میں حاضر ہوں، ان کے غم میں شریک ہوں۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بے وقت ہے یہ ٹائم، کوئی اتنا مناسب ٹائم بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ صبح مجھے بحرین جانا ہے تو میں نے درخواست کی، انہوں نے وقت دے دیا، تو یہاں ان سے تعزیت کا موقع مل گیا، تو میں ان کا بےحد مشکور ہوں۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے پاکستان، کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے کہنے پر، اور جو مئی 2021 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ان سے نشست ہوئی تھی، اور اس نشست میں جو کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ تشریف لائے۔ دفتر خارجہ میں میری ان سے سیر حاصل گفتگو رہی، تبادلہ خیال ہوا، بہت مفید رہا، اور ہم نے ایک فورم جو اس کو جس کا ایک خاکہ مئی میں پیش کیا گیا تھا اس کو آج عملی شکل دی ہے، اور وہ ہے سعودی پاک سپریم کنسلٹیٹو کونسل، تاکہ ہمارے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کر لیں، ایک سٹرکچرڈ طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں، اور اس پر پیش رفت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ مزید تعلقات میں وسعت اور گہرائی دیکھیں گے، جو مجھے اس کی بے حد خوشی ہے۔ جو حالیہ دورہ ہے آپ کا سعودی عرب کا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور وہاں کیا پیش رفت ہوئی، وہاں کن معاملات کے اوپر جو آپ کی گفتگو ہوئی؟ بحرین دیکھیے، بحرین میں کل جا رہا ہوں۔ بحرین بھی ایک ہمارا برادر ملک ہے، اہم ملک ہے، ان نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے انٹرنیشنل فورمز پر۔ ہماری خاصی تعداد میں پاکستانی وہاں ہیں جو وہاں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں ہیں، اور ان کی معاونت کر رہے ہیں بہت سے ایریاز میں۔ تو وہاں جو ہماری جوائنٹ منسٹریل کمیشن کا اجلاس ہے، وہاں کے وزیر خارجہ اور میں اس کو کو چیئر کریں گے انشاءاللہ۔ کل اس کی شام کو نشست ہے، میں وہاں ان کے مختلف اہم جو قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات پر بات بھی ہوگی، ان کے پرائم منسٹر سے، ان کے کراؤن پرنس سے، جو ان کے جو کنگ آف بحرین جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو ایک موقع ملے گا پاکستان کا مختلف جو اس وقت اس خطے میں صورتحال ہے اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا، اور ان سے بہت سی باتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ افغانستان کی صورت میں پیٹف کے معاملے کو بھارت جو ہے بڑے سیاسی طور پر یوز کر رہا ہے، اس کو آپ کس طرح نیگیٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو پاکستان کس طرح تنازع دے؟ دوسرا، آپ سندھ میں آئے ہیں تو اب سندھ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ٹف ٹائم ہونے جا رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں سندھ میں؟ آپ نے 3 سوال کر دیے۔ جہاں تک پیٹف کا تعلق ہے، پاکستان کی کارکردگی کا آج دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ انہوں نے 27 نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا تھا
एक एक्शन प्लान दिया था, उस 27 में से 26 वो अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने फुली कंप्लाई कर लिया है। जो एक रह गया है उस पर भी खासी पेशरफ्त हो चुकी है और इंशाल्लाह उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान ने अपने मफाद में मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए ये इक़दाम उठाए हैं और दुनिया उसकी मोतरफ़ है। नंबर एक, भारत ने इस फोरम को, जो टेक्निकल फोरम है, उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की और जो मैंने कहा था वो उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि हमने पाकिस्तान को अपनी कोशिशों से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, यानी कि उस फोरम को वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। और ये बड़ा एक क्लियर पैगाम गया दुनिया को, फैटफ के मेंबर्स को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बारहा कहता रहा लेकिन उसकी तस्दीक हो गई। इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान को कामयाबी होगी। नंबर एक। दूसरा आपका सवाल था अफ़गानिस्तान। गवर्नमेंट का जो इशू है उसके बल्कि मुस्तकिल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात अफगान गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, हमारा रवैया मुख्तलिफ क्यों है? हम अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं, हम अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं। हमारी दिलचस्पी अफ़गानिस्तान के अवाम से है। हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि अफ़गानिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने भी बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन अफ़गानिस्तान के लोगों ने भारी कीमत अदा की है। कई दहाइयों से वहाँ खून खराबा हो रहा है, बदअमनी है और वो लोग अपने मुस्तक़बिल के बारे में परेशान हैं। वो अमन चाहते हैं और वो समझते हैं कि अमन का वाहिद रास्ता जो है वो गुफ्त व शुनीद है, एक सियासी हल है। अगर अस्करी हल होता तो 20 सालों में निकल चुका होता। नहीं है अस्करी हल, सियासी हल जो पाकिस्तान कहता आया, आज दुनिया उसको तस्लीम कर रही है। तो अफ़गानिस्तान की आवाम के मफाद को सामने रखते हुए हम कई दफ़ा उनकी कड़वी बातें भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। मिसाल के तौर पर, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने किसी शख्सियत के बारे में नहीं, पूरे पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज उन्होंने कहे, कोई ज़ी शऊर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी क्या उसे बर्दाश्त करेगा? जो कुछ उन्होंने आपके घर के बारे में कहा, मुझे वो अल्फाज दोहराते हुए भी हिचकिचाहट हो रही है और हम उन्हें दावतें दें, हम बगलगीर हों, ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और हम उनकी नुक्ताचीनी के बावजूद हम दुआगो हैं कि उनको हम उनकी बेहतरी में हम खुश हैं। हम नहीं उनके मामलात में मदाखलत न करना चाहते हैं, न कर रहे हैं। आपने देखा कि जब भी उनको कुछ दिक्कत हुई तो हमने बड़ी इज्जत से उनके लोगों को उनके हवाले किया। अभी आपके सामने ताज़ा मिसाल आपके सामने है। तो हम उन अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं और इंशाअल्लाह निभाते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पीस है, रिकन्सिलिएशन है। देखिए, वज़ीर आज़म, देखिए, सिंध का जो सूबा है वो पाकिस्तान की इकाई है, वफाक का हिस्सा है। जहाँ पीपल्स पार्टी को हक है कि वो पंजाब में जाकर अपनी सियासी कैंपेन करे, लोगों से रुजू करे, राब्ता करे, तो क्या तहरीक इंसाफ को हक नहीं है कि वो सिंध में आए और अपने दोस्तों से, जिनके साथ उनका ताल्लुक़ है, और उस तबके से जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, जो पीपल्स पार्टी की 12 साला हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हैं, क्या उनसे राब्ता करना कोई उसमें कोई ममानियत है? हरगिज़ नहीं है। इंशाअल्लाह हम आएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हम उनकी बात सुनेंगे और अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ
सिंध में बहुत बाइज़्ज़त घराने हैं, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, यहाँ आस्थाने हैं, सजादा नशीन हैं, जिनका एक अपना हल्का असर है, उनका अपना एक ताल्लुक़ है, आज का नहीं सदियों से उनका ताल्लुक़ है, और उनकी सोच पीपल्स पार्टी की सोच से जुदा है। तो उनसे मिलना, उनसे सिंध के हालात के बारे में आगाही हासिल करना, मैं समझता हूँ कि उस पर कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब आते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने मरासिम बढ़ाते हैं, सिंध के अवाम तक अपनी रसाई बढ़ाते हैं, सिंध के लोगों की तकलीफ़ को बांटने के लिए, उनके लिए अगर कोई वो इक़दामात उठाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कराची की बेहतरी के लिए अगर कोई पैकेज देते हैं, इंटीरियर के लिए जहाँ वहाँ जो बेहतरी के लिए वो कोई माहौल बना सकते हैं, सिंध की लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए। आपने देखा कच्चे के इलाके में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं है, डाकुओं का गलबा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत जो है वो बहुत तशवीशनाक है, बिगड़ चुकी है, तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुकी है। तो अगर वहाँ वफाक अपना रोल प्ले करता है और लोगों को, आम शहरियों को, आम जो वहाँ का जो हारी है, जो सिंधी है, उसको प्रोटेक्शन देता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कानून और आइन और जमहूरी तकाज़ों के अंदर रहते हुए। तो इस पर किसी को घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ये बताइएगा कि आपने बताया कि सिंध की जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वो बहुत ख़तरनाक है। पहले ये कहा जा रहा था कि इन तमाम मामला की जो बुराई की जो वजह है वो 18 अमेंडमेंट है, कि वफाकी हुकूमत 18 अमेंडमेंट में दोबारा कोई तरमीम करने जा रही है? नहीं, ये सहारा लेती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। जब अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना होता है ना, तो फिर उनको 18वीं तरमीम पे कोई वार दिखाई देता है। जब अपनी नाकिस कारकर्दगी पे पर्दा डालना होता है ना, तो फिर उनको पानी का मसला याद आ जाता है। जब अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना होता है ना, तो फिर उन्हें वफाक जी, फिर NFC अवार्ड जो है वो याद आ जाता है। ये सियासी बयानबाजी है मेरे भाई, जो करते रहते हैं। हकीकतन सिंध के लोग, मैं समझता हूँ, सब तो नहीं होते, लेकिन सिंध का बहुत बड़ा तबका छुटकारा चाहता है, नजात चाहता है, और वो देख रहा है उन कुव्वतों की तरफ, उन सियासी कुव्वतों की तरफ जो बतौर नजात दहंदा सिंध में आकर अपना किरदार अदा करें, और इंशाअल्लाह हम करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक टीचर हूँ और मैं इस वक्त गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गाज़ीपुर में तैनात हूँ, और मेरी तदरीस का सिलसिला जारी है, और मुझे 32 साल हो गए हैं बच्चों को तालीम देते हुए। और अब मेरा बच्चा FSC का इम्तिहान दे रहा था, और सेंटर पे फ़िज़िक्स का पेपर जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे ने लिखा था, और वो अमले ने गैब कर दिया है। और ये कितना बड़ा जुल्म है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से तालीम दी है, और मैं पार्ट टाइम में पापड़ फ़रोख्त कर सेल करके बच्चों का गुजारा करता हूँ। और ये मेरी अपील है कि ये जो जुल्म है ये कब तक जारी रहेगा, और ऐसे बच्चों का क्या बनेगा जब ऐसे मेरिट वाले बच्चों के साथ ये कुछ हो रहा है, तो फिर बाकी बच्चों का क्या बनेगा। ये एक माफिया है जो कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रही है। हम मेरी वज़ीर आला इमरान खान और वज़ीर तालीम मुराद राज साहब से, और गवर्नर साहब से, और DPO सरफराज साहब से अपील है कि जो हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है वो खारिज की जाए, और ताकि बच्चा अपना मुस्तकबिल जारी रख सके और तालीम जारी रख सके। मेहरबानी। और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, सईद गनी, आप
ये स्कूल आपके हवाले हैं, टीचर्स आपके हवाले हैं। गो कि आप अभी तक ज़ेरे तालीम हो, लेकिन ये बच्चियाँ बहैसियत वज़ीर के आपके हवाले हैं। आपको शर्म करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि आज ये बच्ची इंसाफ के लिए आपके 4 हेडमास्टर समेत टीचर्स के खिलाफ भागी भागी फिर रही है और वो धमकियाँ दे रहे हैं। एक दिन ना उन्हें सस्पेंड किया गया। कोई हया है, कोई शर्म है? मैं कहना चाहता हूँ इसका इंशाल्लाह बेटा आपको इंसाफ हम दिलाएंगे और आपका केस अब हम लड़ेंगे। हमारे साथ सफीर रानीपुर अहमद अली शाह जिलानी साहब मौजूद हैं, हमारे पास यार मोहम्मद साहब मौजूद हैं, हमारे खैरपुर की क़यादत को हवाले कर दिया है। साईं ताहिर शाह साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं ख़ुद मौजूद हूँ इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ इससे मिसाल आपके सामने आ गई कि पीपल्स पार्टी कितने गंदे धंधे तक करा देती है। पीपल्स पार्टी के इलाके के ज़िम्मेदारान किस हद तक जो टीचर्स जो कि तालीम एक उस्ताद के नाम पे धब्बा है उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सिंध में ये क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है, मुजरमों की गवर्नमेंट है, चोरों की गवर्नमेंट है, लुटेरों की गवर्नमेंट है, बेइज्जतों की गवर्नमेंट है और हम इसको सिंध में नहीं छोड़ेंगे। शाह साहब थोड़ी सी बात कर ले फिर मैं समझ जवाब करने से पहले कि मैंने कभी भी डिस्ट्रिक्ट बार के किसी भी तहसील के ज़िले के इलेक्शन में कभी दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपकी वकला की बॉडीज़ हैं वो पोलराइजेशन से पाक रहें और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से उनको पाक होना चाहिए, क्योंकि आप सबके वकला हैं, हर पार्टी की आपके साथ उम्मीदें हैं, हर पार्टी के कारकुन की आपके साथ उम्मीदें हैं। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश यही होती है कि बाहर के मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मैंने कभी की भी नहीं। मैं यहाँ आज सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूँगा और वो है गवर्नेंस के ऊपर, और अपनी बात इंशाल्लाह 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। गवर्नेंस की बड़ी बात सुनते होंगे आप मीडिया के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए। गवर्नेंस के कुछ लवाज़मात बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, बेस जो है उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहला जो लाजिम जुज़ है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का, वो एक विजन होना चाहिए सियासतदान का, बड़ा क्लियर कट विजन होना चाहिए। उस विजन में इकोनॉमिक विजन, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, ये तमाम चीज़ें उस विजन का हिस्सा होनी चाहिए। दूसरा गवर्नेंस का जो सबसे अहम असूल है कि आपकी गवर्नेंस में नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो करप्शन का है। आपकी गवर्नेंस के अंदर करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस इदारे में भी नेपोटिज्म और करप्शन होगी और विजन नहीं होगा वो कभी कामयाबी से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं 2000 में मुझे मौका मिला कि मैं अपना विजन इम्प्लीमेंट कर सकूं। आप लोगों की मेहरबानी से मैं ज़िले में नाज़िम इलेक्ट हुआ। मियाँ सितार साहब मेरे साथ मेरे नायब नाज़िम थे, मुराद खान साहब जहाँ बैठे हैं वो आपकी तहसील के नाज़िम थे। पहला काम जो मैंने किया वो ये किया कि एक विजन बनाया और गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल साहब को दावत दी। उनको हमने पाकिस्तान के आईन व कानून की बालादस्ती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहूँगा। इस्लाम के सरबलंदी पाकिस्तान के आईन और कानून की बालादस्ती के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगा। बेंच और बार के वकाल को बुलंद करने और खानपुर बार एसोसिएशन की तरक्की के लिए कोशिश रहूँगा। बेंच और बार के वकाल को बुलंद करने खानपुर बार एसोसिएशन की तरक्की के लिए कोशिश रहूँगा। मैं बाल के मफाद पर जाती मफाद को तरजीह नहीं दूंगा। अपने फ़राइज़ मनसबी निहायत ईमानदारी और भरपूर सलाहियत से अदा करूँगा। मैं बाल के मफाद पर जाती मफाद को तरजीह नहीं दूंगा। अपने फ़राइज़ मनसबी निहायत ईमानदारी और भरपूर सलाहियत से अदा करूँगा।
अल्लाह मेरा हाम व नासिर हूँ, आप सबको बहुत मुबारक। काबीना को हिम्मत और ताकत का फरमा, बिहार के मसाइल हल करे, नौजवानों के मसाइल हल करे और इस बार को बेहतर तरीके से चलाए। बार और बेंच में मोहब्बत और इत्तेफाक से मामलात को चलाए। फिलहाल हम सबको सेहत कामला जला नसीब फरमा, इस मुल्क के खैर फरमा, पाकिस्तान के खैर फरमा, तमाम वबाई अमराज से महफूज फरमा और मखदूम मोहम्मद महमूद साहब हमारी यही सरपरस्ती फरमाएं, जिनको सेहत और तंदुरुस्ती के नवाज सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़ भी मुहम्मद व आला असहाबी अजमईन बिरहमतिका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, एथे कोई ना तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, एथे कोई ना तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। असा जाना मदीने नू, असा जाना मदीने नू, मिलना अरबी नगीने नू। असा जाना मदीने नू, असा जाना मदीने नू, मिलना अरबी नगीने नू। होया शौक वदेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, जिथे मदनी दा डेरा